So, dear students, in today's lecture, we are going to discuss about double revolving field theory in single phase induction motor. There are two theories by which we can analyze the operation of single phase induction motor. Basically, to understand the operation of single phase induction motor, we must have to compare it with the operation of three phase induction motor. ओके सो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमने थियरीज डेवलप किया है, कुछ मिलती जुलती सी चीज़ें हमें अगर सिंगल फेज में हम अप्लाई करेंगे, देन हम उसको एनालाइज कर पाएंगे कि ये किस तरह से रोटेट करती है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, इक्विवेलेंट सर्किट कैसी है, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रही है. सो देर आर टू थियरीज बेसिकली. वन इज डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी एंड अनदर इज क्रॉस फील्ड थियरी. तो क्रॉस फील्ड थियरी इज डिफरेंट, but double revolving field theory, we have just the same concept we have just studied in three phase induction motor. So we will analyze double revolving field theory, we will study double revolving field theory and analyze the operation of three phase induction motor. Okay, so watch the lecture carefully. So we take a single phase induction motor. Suppose we take a single phase induction motor. This is the rotor. I have taken squirrel cage rotor. This is squirrel cage rotor and a stator winding. Okay, this is stator winding and the current flowing in stator winding I. This is the axis of winding. This is the axis of winding. This is winding axis. And the current flowing I, it can be written as I max cos omega t. Okay, so mind it one thing, here we have considered squirrel cage rotor and the stator winding. यहाँ पे stator winding it seems to be concentrated, but stator winding concentrated नहीं होती है. The winding is distributed along the armature periphery. ठीक है, the winding is distributed in space so that space fundamental MMF is dominant one. मतलब वाइंडिंग को हम स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि स्पेस जो MMF वेव्स है वो प्रोड्यूस हो पाए. ओके, सो हियर वी विल ओनली कंसीडर द फंडामेंटल फ्लक्स, वी विल नॉट कंसीडर हायर ऑर्डर हार्मोनिक फ्लक्सेस. ओके, सो हम जो फंडामेंटल फ्लक्स वेव बनेगी या फंडामेंटल MMF वेव बनेगी उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. ओके, सो व्हेन वाइंडिंग कैरीज, अब जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, नोट इट डाउन. व्हेन वाइंडिंग कैरीज अ साइनोसोडल करंट, it produces a sinusoidally space distributed MMF. When winding carries a sinusoidal current, it produces sinusoidally space distributed MMF whose peak value pulsates with time. Whose peak value pulsates with time. जिसकी peak value time के साथ pulsate करेगी. Pulsates with time. Okay. Now, as seen from the winding axis, अगर हम winding के axis से देखें, as seen from winding axis, MMF at any angle theta, MMF at any angle theta is given as F. This will be equal to F peak cos theta. I repeat, when winding carries a sinusoidal current, it produces a sinusoidally space distributed MMF whose peak value pulsates with time. As seen from the winding axis, MMF at any angle theta. अगर हम winding के axis से देख रहे हैं तो MMF at any angle theta, it can be given as F is equal to F peak cos theta, where theta is the angle measured from winding axis. जहाँ पे आप theta जो angle है उसको आप winding axis से, theta is the angle measured from winding axis.
मेजर्ड फ्रॉम वाइंडिंग एक्सिस. ओके, ठीक है. नाउ जो एफ पीक है, जो इसकी पीक वैल्यू है, इट पल्सेट्स विथ टाइम. सो एफ पीक इट इज गिवन एज एफ मैक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी. एफ मैक्स cos of omega t. Okay, so we see the MMF has both space and time distribution. मतलब so that जो हमने यहाँ पे लिया, इसकी पीक वैल्यू को टाइम के साथ पल्सेट करा लिया और स्पेस में भी जो है MMF हमने देख लिया. so that the MMF at so that MMF has both space and time distribution. Both space and time distribution. Expressed as, जिसको आप express करेंगे, expressed as. How it can be expressed? Now F, this is equal to F max. अब इसको आप इसमें पुट कर दें, F max cos theta cos omega t. F max cos theta cos omega t. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो cos a cos b, 2 cos a cos b यू कैन रिटन एज cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b. तो अगर इसको हम ब्रेक कर देते हैं सो इट इज रिटन एज, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, सो 1/2 कंपोनेंट आ जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज हाफ f max cos थीटा माइनस ओमेगा टी, थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस हाफ एफ मैक्स कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी. ओके, सो जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, ये जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी या पल्सेटिंग जो एमएमएफ थी, सो इट हैज बीन रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स. One is half f max cos theta minus omega t and another is half f max cos theta plus omega t. So pulsating magnetic field, the single phase pulsating magnetic field can be considered as, note it down. So the pulsating magnetic field, single phase magnetic field can be considered as the superimposition of या superposition of two rotating fields, one rotating at synchronous speed in opposite direction. I repeat again, the single phase pulsating magnetic field can be considered to be the superposition of two rotating magnetic fields in opposite direction at synchronous speed. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारी pulsating magnetic field थी, जब हमने इसको ब्रेक किया तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये सुपरपोजिशन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है एट सिंक्रोनस स्पीड. बात समझ में आ गई? सो एक को हम कह देंगे फॉरवर्ड फील्ड एफ एफ, विच इज रिटन एज हाफ एफ मैक्स कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी. इसको हम कह देंगे फॉरवर्ड फील्ड. दिस इज फॉरवर्ड फील्ड. एंड अनदर इज एफ बी, विच इज हाफ एफ मैक्स कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी. इसको हमने कह दिया बैकवर्ड फील्ड. ठीक है, तो अब जो इसको मैं कंक्लूड करूं तो हमने ये किया कि जो हमारी सिंगल फेज पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, जो कि विच वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस टॉर्क, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, हमने उसको कंसीडर कर लिया कि ये 2 रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनी है, जिसकी जो एम्पलीट्यूड है हाफ एफ मैक्स है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है. एक को हम फॉरवर्ड फील्ड कह रहे हैं, दूसरे को हम बैकवर्ड फील्ड कह रहे हैं, एंड द बोथ फील्ड्स आर रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज द बेसिक थिंग. ओके, तो अगर इसको हम दिखाना चाहें तो किस तरह से दिखा सकते हैं? सपोज दिस इज एफ मैक्स, ये हमारी जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. दिस इज द वाइंडिंग एक्सिस, ये हमारी वाइंडिंग एक्सिस है, वाइंडिंग एक्सिस. तो आपने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट्स में. फर्स्ट इज 2 कंपोनेंट में आपने इसको रिजॉल्व किया. फर्स्ट इज एफ एफ, जो कि किसके बराबर है, हाफ एफ मैक्स के बराबर है, और दूसरा है एफ बी,
बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड अगेन दिस इज हाफ एफ मैक्स के बराबर है, और ये दोनों सिंक्रोनस स्पीड पे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। यही हमने यहाँ पे पढ़ा है। दैट इज द पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू two rotating magnetic fields. One is said to be forward rotating field, another is said to be backward rotating field, having an amplitude which is equal to half of f max, and both are rotating in opposite direction at synchronous speed. This is the basic fundamental. Okay. अब देखिए यहाँ पे अगर दो फील्ड हो रही है तो दोनों हमें फिर अगर रोटर के मैं स्लिप की बात करूं, ध्यान से समझिए आप, अगर एक फील्ड होती तो रोटर में एक ईएमएफ इंड्यूस होती, लेकिन अगर दो फील्ड हो रही है तो रोटर में दो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और रोटर में अगर दो ईएमएफ इंड्यूस होगी तो दो करंट होगी, रोटर में फिर स्लिप भी होगी। तो अगर हम बात करें बैकवर्ड स्लिप और फॉरवर्ड स्लिप की, नाउ रोटर स्लिप विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फील्ड्स, रोटर स्लिप विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फील्ड्स क्या क्या हो जाएगी। एक तो हमने जो फॉरवर्ड फील्ड है, फॉरवर्ड स्लिप है, उसको हमने फॉरवर्ड फील्ड के कारण जो स्लिप होगी उसका नाम हमने एस एफ दे दिया। जो फॉरवर्ड फील्ड के कारण स्लिप होगी उसका नाम हमने एस एफ दिया। अच्छा देखो एक चीज, ये फॉरवर्ड किसको मानेंगे आप, किसी एक्चुअली कल मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू गिव अ स्पिन, आप अगर किसी इंडक्शन मोटर को स्पिन दे देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो उसी में मूव करना शुरू कर देता है। तो द डायरेक्शन इन विच वी हैव गिवन अ स्पिन, जिसमें हमने एक इनिशियल मोशन दिया है, उसी को हम फॉरवर्ड फील्ड कहेंगे। वो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो जो फॉरवर्ड फील्ड की स्लिप होगी वो क्या हो जाएगी, एस एफ दिस इज इक्वल टू अगेन एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, जो सिंपल एस है उसके बराबर ये हो जाएगा। कारण आपने क्या समझा कि अगर आप रोटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन देंगे, मान लो मैंने एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज में, तो रोटर हमारे एंटी क्लॉकवाइज में घूमने लगी, तो एनआर की वैल्यू बढ़ने लगी किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसमें जो नॉर्मल है स्लिप वो एस के बराबर होगी। सो फॉरवर्ड स्लिप इज एस। नाउ वी टॉक अबाउट बैकवर्ड स्लिप एस बी। तो एस बी देखो, फॉरवर्ड फील्ड तो हमारे जो स्पिन है उसी के डायरेक्शन में है। अब जो बैकवर्ड फील्ड है इसकी वजह से स्लिप क्या होगी, देखो एन एस, बैकवर्ड फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, सो एन एस माइनस ऑफ माइनस एन आर, एन एस minus of minus nr upon ns, so it is equal to ns plus nr upon ns. So you can write ns, nr को आप लिख सकते हैं, nr is equal to ns into 1 minus s upon ns. So जो इसकी वैल्यू आ जाएगी बैकवर्ड स्लिप की, it will be 2 minus s. This is very important. तो जो फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, s, और जो बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू आ गई वो हो गई 2 minus s. नाउ यू कैन ड्रॉ द रोटर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड एंड बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। तो जो रोटर की इक्विवेलेंट सर्किट होगी वो कैसी बन जाएगी, रोटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी, अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट एट इनिशियल लेवल। तो जो रोटर की इक्विवेलेंट सर्किट होगी, एक तो आपकी फॉरवर्ड फील्ड के कारण ईएमएफ होगी, इसका नाम हमने दे दिया ईएफ, ठीक है। फॉरवर्ड फील्ड के कारण रोटर में करंट होगी, इसका नाम हमने दे दिया I2F, और रोटर की अपनी रिएक्टेंस होगी और रोटर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अभी हमने इसको कहीं रेफर नहीं किया है, सो दिस इज R2, फॉरवर्ड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लिप कितनी है R2/S, और ये कितनी है XL2। बात समझ में आ गई। देखो रोटर में जो ईएमएफ है वो है हमारी ईएफ, फॉरवर्ड जो हमारी ईएमएफ है, रोटर की करंट फॉरवर्ड फील्ड के कारण I2F, रोटर की जो लीकेज रिएक्टेंस XL2, और रेजिस्टेंस R2, स्लिप जो इसकी है उससे हमने डिवाइड कर दिया। ये किसके कारण है, फॉरवर्ड फील्ड के कारण। अब बैकवर्ड फील्ड के कारण अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, दिस इज अगेन XL2, नाउ दिस इज R2, और यहाँ पे जो ईएमएफ हो जाएगी वो ईएमएफ हो जाएगी EB, और जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी I2B, ठीक है। और ये तो हमारी XL2 एज इट इज रह गई, और अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, R2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस S। दिस इज द ये बैकवर्ड फील्ड के कारण है।
ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड एंड ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड. आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, सो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने बनाया, सबसे पहले तो हमने स्लिप निकाल ली कि फॉरवर्ड फील्ड के कारण क्या स्लिप होगी और बैकवर्ड फील्ड के कारण क्या स्लिप होगी. फॉरवर्ड फील्ड जिस डायरेक्शन में मोटर हमारी घूम रही है, रोटेट करेगी एक्चुअल में, तो वहां पे एस आ जाएगी नॉर्मल जो स्लिप होती है. तो बैकवर्ड फील्ड हमने निकाल लिया 2 माइनस एस. अब 2 माइनस एस दैट इज दिस इज ब्रेकिंग. 2 माइनस एस का मतलब है कि ब्रेकिंग कंडीशन की बात हो रही है. ठीक है, स्लिप की वैल्यू अगर हमारी 1 से ज्यादा हो रही है, ठीक है, इसका मतलब वो ब्रेकिंग कंडीशन है. ओके, बिकॉज दिस इज रोटेटिंग इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन. ओके, नाउ रोटर की हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाई फॉरवर्ड फील्ड के कारण, बैकवर्ड फील्ड के कारण. सो दिस इज द बेसिक थिंग जो अभी तक हमने डिस्कस किया. तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी उसको हमने दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में के तौर पे सपोज कर लिया. एक हमारी फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड है, एक बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड है. बोथ आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, एट सिंक्रोनस स्पीड. एंड दोनों फील्ड के कारण रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगी, दोनों फील्ड के कारण रोटर में स्लिप होगी. एक को हमने फॉरवर्ड स्लिप कहा, एक को हमने बैकवर्ड स्लिप कहा. और दोनों की वजह से जो रोटर में की जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी, सो वी हैव ड्रॉन दिस इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, सो नाउ सपोज अब हमने क्या किया कि रोटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन दे दिया. रोटर को नाउ हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर रोटर को स्पिन दे दें, सपोज दिस इज, ये हमारी वाइंडिंग एक्सिस है और यहां से हमने इस तरह से जो हमने एक बैकवर्ड फील्ड मान लिया क्लॉकवाइज में, इसकी वैल्यू हाफ एफ मैक्स ले ली और ये क्लॉकवाइज में एन एस स्पीड पे रोटेट कर रही है. और ये फॉरवर्ड फील्ड एफ एफ, अगेन दिस इज हाफ एफ मैक्स, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. रोटर को हमने सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करा दिया. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब फॉरवर्ड जो हमारी फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमने रोटर को रोटेट करा दिया. ओके, और किस स्पीड पे रोटेट कराया? एन स्पीड पे हमने रोटर को रोटेट कराया. नाउ अब जो हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ व्हेन रोटर इज स्टेशनरी, जब हमारी रोटर स्टेशनरी है तो व्हाट विल हैपन? अंडर स्टेशनरी कंडीशन, under stationary condition, now when rotor is stationary, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. जब स्टेशनरी में स्लिप की वैल्यू क्या होती है? 1. तो अब आप देख लें कि जो आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्लिप है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. एस बी एस एफ इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. ठीक है, जो आपकी फॉरवर्ड स्लिप है वो भी 1 हो जाएगी और बैकवर्ड स्लिप की भी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 2 माइनस एस, सो 2 माइनस 1 इट विल बी 1. तो दोनों स्लिप की वैल्यू हमारी 1 हो गई. नाउ अंडर दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन? जो I2B है, I2B मतलब जो हमारी बैकवर्ड फील्ड के कारण करंट है, और I2F जो हमारी फॉरवर्ड फील्ड के कारण करंट है, बोथ दीज करंट्स विल बी सेम. ये जो दोनों करंट है ये क्या होगी? सेम. ध्यान से इसको समझिए. अगर हम रोटर स्टेशनरी कंडीशन में है तो स्लिप की वैल्यू 1 हो गई. जो फॉरवर्ड स्लिप है और जो बैकवर्ड स्लिप है इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई. अब स्लिप इक्वल होने का क्या मतलब है? रोटर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर स्लिप इक्वल है तो जो आप निकालते हैं रोटर की इंपिडेंस, वो रोटर की इंपिडेंस आप क्या निकालते हैं? R2 डैश अपॉन एस प्लस XL2 डैश, R2 डैश अपॉन एस का स्क्वायर प्लस XL2 डैश का स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, तो दोनों की स्लिप 1 है तो दोनों की जो इंपिडेंस होगी वो दोनों की इंपिडेंस सेम होगी, दोनों की करंट सेम होगा. ओके, नाउ अगर दोनों की करंट सेम है तो जो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड होगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों सेम होगी, और इसके वजह से जो दोनों की वजह से अपनी टॉर्क होगी, फॉरवर्ड फील्ड के कारण टॉर्क होगी, बैकवर्ड फील्ड के कारण टॉर्क होगी, और दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इक्वल होगी. सो जो नेट टॉर्क की वैल्यू होगी इट विल बी 0. ओके, सो आई रिपीट अगेन,
इन स्टेशनरी कंडीशन, अगर हम स्टेशनरी कंडीशन की बात करेंगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्लिप सेम होगी, ठीक है। अब जब स्लिप सेम हुई तो इम्पिडेंस दोनों की सेम होगी, फॉरवर्ड इम्पिडेंस और बैकवर्ड इम्पिडेंस, रोटर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इम्पिडेंस सेम होगी। अगर दोनों इम्पिडेंस सेम तो दोनों करंट सेम, दोनों करंट सेम तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल स्ट्रेंथ की होगी, बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स विल बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। And if the both magnetic fields are of equal strength, it will produce equal torques and in opposite direction. So दो torque produce होगा, दोनों equal होगी और दोनों opposite direction में होगी. So the net torque under this condition is 0. So this is the basic thing. Okay? तो ये हमने बात किया जब रोटर हमारी स्टेशनरी है. Now rotor starts rotating. ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि जब हमारी रोटर स्टेशनरी थी तो उस पर हमने बात किया. Now second point, we have given an initial spin to the rotor. अब हमने रोटर को एक इनिशियल स्पिन दे दिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड फील्ड वही होती है जिस तरफ हमने रोटर को रोटेट कराया या इनिशियल एक मोशन दिया, वही हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन है. ओके, सो नाउ वी हैव गिवन एन इनिशियल स्पिन टू द रोटर. नाउ व्हाट विल हैपन? अगर आप रोटर को नाउ रोटर हैज गिवन an initial motion, जब रोटर को आप इनिशियल मोशन देंगे तो क्या होगी? जो फॉरवर्ड स्लिप है SF, जिस डायरेक्शन में अब ये रोटेट करना शुरू करेगा, देखो आप जब स्टेशनरी है तो स्लिप 1, अब जब जैसे जैसे रोटर हमारी रोटेट करेगी तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है, जैसे ही आप मोशन देंगे तो जो फॉरवर्ड स्लिप है इनिशियल मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप ऐसे लिख लो, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी मोर क्लियर, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो जो फॉरवर्ड स्लिप है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी. अब अगर फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो Z2 है, Z2F, आप ऐसे लिख लें, जो रोटर की इंपिडेंस है फॉरवर्ड फील्ड के कारण, उसकी वैल्यू क्या होगी? यस, इंक्रीज होगी. अब कैसे इंक्रीज होगी? अब आप देखो, जो Z2 की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? अंडर रूट R2 डैश अपॉन S का स्क्वायर प्लस XL2 डैश का स्क्वायर. ऑब्वियस है, अगर स्लिप की वैल्यू कम हुई तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये वाला टर्म बढ़ेगा, तो जो हमारी इंपीडेंस होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी. सो ये हमारी इंक्रीज हो गई. ओके, अगर ये हमारी इंक्रीज हो गई तो जो हमारी फॉरवर्ड करंट है I2F, इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. जो रोटर के कारण, रोटर की फील्ड के कारण जो हमारी जो हमारी फॉरवर्ड फील्ड के कारण करंट होगी वो हमारी डिक्रीज होगी. नाउ व्हाट विल हैपन? अब देखो, अगर हमारी रोटर की फील्ड की करंट डिक्रीज होगी तो जो इसकी MMF है, जो हमारी रोटर में MMF होगी, ये जो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न प्रोड्यूस करेगा वो कम होगी. ध्यान से समझिए, हमारी फॉरवर्ड फील्ड वो किसकी फील्ड है? स्टेटर की फील्ड है. अब जो रोटर की MMF हुई तो रोटर की करंट हुई फॉरवर्ड फील्ड के कारण, तो रोटर की MMF भी होगी ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड. और अगर हमारी रोटर की करंट कम है तो जो MMF है, इसकी जो डीमैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है, जो इसकी डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन स्ट्रेंथ है, ये क्या होगी? कम होगी. ठीक है, अब अगर फील्ड कम तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कम, और अगर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कम तो जो हमारी फॉरवर्ड फील्ड होगी it will be more stronger. ठीक है, so you can say forward field will be more strong. मतलब जैसे जैसे हमारी रोटर स्पीड अप होती जाएगी तो रोटर की करंट हमारी डिक्रीज करती जाएगी. रोटर की करंट, मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड फील्ड की बात. जब हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटर मूव हुई तो जो फॉरवर्ड इंपीडेंस है उसकी वैल्यू बढ़ गई, फॉरवर्ड करंट की वैल्यू घट गई. अब रोटर में जो फॉरवर्ड करंट के वजह से MMF आएगी उसकी वैल्यू कम होगी. सो जो इसका डीमैग्नेटाइजिंग जो ये इफेक्ट लगाएगी, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट, ये रिड्यूस होगी. डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है ये कम होगा. और अगर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कम होगा, देयरफॉर द फॉरवर्ड फील्ड विल बी मोर स्ट्रांग. ठीक है, ये हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, या मोर स्ट्रांग और स्ट्रांगर, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. ओके, ये हमने सेकेंड बात की.
अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं बैकवर्ड फील्ड की। तो अब आप देखो, इफ वी टॉक अबाउट बैकवर्ड फील्ड, तो बैकवर्ड फील्ड का क्या होगा? बैकवर्ड फील्ड वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां पे हमने माना है बैकवर्ड फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो अब अगर एस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू इंक्रीज हो डिक्रीज हो गई, तो जो बैकवर्ड फील्ड है इसकी जो स्लिप है 2 - s, अगर ये हमारी कम हो रही है तो ऑब्वियस है जो बैकवर्ड स्लिप है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जो बैकवर्ड हमारी इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अगर बैकवर्ड इम्पिडेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जो I2B है इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अब अगर बैकवर्ड करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसकी वजह से जो MMF होगी वो ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड, MMF ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड, ये क्या होगी? ज्यादा होगी। रोटर में जो MMF होगी ये ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा होगी तो जो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा तो अब जो हमारी बैकवर्ड फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? अब वो स्ट्रांग नहीं रहेगी, धीरे धीरे वीक होती जाएगी। एंड द बैकवर्ड फील्ड विल बी वीकर। ठीक है, ये हमारी वीक होती चली जाएगी। अब देखो, अगर ये वीक होती जा रही है तो जो बैकवर्ड टॉर्क होगी, जो बैकवर्ड हमारी टॉर्क होगी वो क्या होगी? इट विल बी रिड्यूसिंग। और जब हमारी फॉरवर्ड फील्ड स्ट्रांग होगी तो जो हमारी फॉरवर्ड टॉर्क होगी ये क्या होगी? इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से क्या होगा कि जो फॉरवर्ड टॉर्क है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और जो बैकवर्ड टॉर्क है उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। धीरे 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 फॉरवर्ड फील्ड हमारी स्ट्रांग होती जाएगी, फॉरवर्ड टॉर्क हमारी बढ़ती जाएगी और बैकवर्ड टॉर्क की वैल्यू हमारी घटती जाएगी। ठीक है, सो as motor now note it down, as rotor speed increases, the forward flux becomes stronger and stronger while the backward flux become weaker and weaker. जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ेगी फॉरवर्ड फ्लक्स स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, बैकवर्ड फ्लक्स या बैकवर्ड फील्ड वीकर होती जाएगी, which will result into increasing forward torque एंड डिक्रीजिंग बैकवर्ड टॉर्क, जो कि हमारी फॉरवर्ड टॉर्क को बढ़ाएगा और बैकवर्ड टॉर्क को घटाएगा, विच विल इंक्रीज फॉरवर्ड टॉर्क एंड डिक्रीज बैकवर्ड टॉर्क। नाउ वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर्ड, आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि फॉरवर्ड फ्लक्स हमारी स्ट्रांग होगी, बैकवर्ड फ्लक्स हमारी वीक होगी, बट जो दोनों का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो हमारी फॉरवर्ड फ्लक्स है और बैकवर्ड फ्लक्स है, इन दोनों का जो सम है इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ओके, व्हाई कांस्टेंट? बिकॉज द अप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो जो फॉरवर्ड फ्लक्स और बैकवर्ड फ्लक्स, फॉरवर्ड फ्लक्स हमारी बढ़ती जाएगी, बैकवर्ड फ्लक्स हमारी घटती जाएगी, बट जो सम ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड है या बैकवर्ड फ्लक्स है ये दोनों कांस्टेंट रहेगी एज वी हैव अप्लाइड कांस्टेंट वोल्टेज। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉरवर्ड फील्ड एंड द रोटर्स बैकवर्ड रिएक्शन फील्ड, द फॉरवर्ड फील्ड एंड द रोटर्स बैकवर्ड रिएक्शन फील्ड and also the backward field and rotor's forward reaction field, these move in opposite direction with relative speed 2ns. I can write here forward field and rotor's backward reaction field and backward field and rotor's forward reaction field move in opposite direction with relative speed, दोनों के relative speed क्या हो जाएगी? twice of ns, with relative speed twice of ns.
तो अब अगर दोनों की रिलेटिव स्पीड ट्वाइस ऑफ ns है, सो इट विल प्रोड्यूस सेकेंड हार्मोनिक पल्सेटिंग टॉर्क, will produce second harmonic pulsating torque, जिसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, having zero average value, having zero average value। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको देखिए। मैंने कहा कि जो फॉरवर्ड फील्ड एंड रोटर की बैकवर्ड रिएक्शन फील्ड है, और जो बैकवर्ड फील्ड और रोटर की फॉरवर्ड रिएक्शन फील्ड है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं विद रिलेटिव स्पीड ट्वाइस ऑफ ns। दोनों की रिलेटिव स्पीड ट्वाइस ऑफ ns होगी। सो इट विल प्रोड्यूस सेकेंड हार्मोनिक पल्सेटिंग टॉर्क, जो कि एक सेकेंड हार्मोनिक पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू जीरो होगी। सो इससे क्या होगा, as a consequence a single phase induction motor is more and more noisier। तो इसका consequence ये होगा कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये more and more noisier होगा। so you can write here, so सिंगल फेज, यही कारण है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है is more noisier, ये यही कारण है कि जो ये काफी नॉइज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वाइब्रेशंस भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एज अ यू कैन राइट इट डाउन, एज अ कॉन्सिक्वेंस अ सिंगल फेज मोटर इज नॉइजर मोटर देन थ्री फेज वन, क्योंकि थ्री फेज में कोई भी पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को 10 किलोवाट से अबव रेटिंग की नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 10 किलोवाट से ज्यादा रेटिंग की नहीं बनाते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा जो पल्सेशन टॉर्क्स है ये प्रोड्यूस होगा, सेकेंड हार्मोनिक पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और ये क्या करेगा, इसके काफी ज्यादा वाइब्रेशन होगी और नॉइजी ऑपरेशन होगा। दैट्स द रीजन कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज जनरली प्लेस्ड एट रबड़ की शीट पे हम इसको रखने की कोशिश करते हैं, जो रबड़ की शीट्स होती है उस पर हम इसको रखते हैं। सो यू कैन राइट इट डाउन, that's the reason that the single phase induction motor is kept on a rubber mat। इसको हम एक रबड़ मैट पे रखते हैं, और या आप किसी प्लास्टिक के मतलब फाउंडेशन पे आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, रबड़ मैट पे या रबड़ मैट पे और प्लास्टिक फाउंडेशन पे हम इसको रखते हैं, सो दैट कि जो ये नॉइज प्रोड्यूस हो रही है, जो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये कम से कम हमारे कानों तक आए। ओके, सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल जो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो अब अगर हम स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहें, अगर हम फॉरवर्ड फील्ड के कारण और बैकवर्ड फील्ड के कारण, दोनों के कारण अगर हम स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं तो वो किस तरह से होगी। अब देखिए, अब देखो फॉरवर्ड फील्ड, अगर ये हमारी टॉर्क है, सपोज दिस इज, यहां मान लिया, यहां से हम ड्रॉ करते हैं, पहले ड्रॉ कर लो, और यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने टॉर्क बनाया है, दिस इज फॉरवर्ड फील्ड, दिस इज फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क, ये हमारी फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क है, एंड दिस इज बैकवर्ड फील्ड टॉर्क, ये हमारी बैकवर्ड फील्ड टॉर्क है। ये हमारी स्पीड की एक्सिस है, यहाँ पर जो स्पीड है ये ns है, और यहाँ पर जो स्पीड है ये माइनस ऑफ ns है, ठीक है। जैसा ये ब्रेकिंग रीजन होता था, तो चूंकि जब बैकवर्ड फील्ड है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, मतलब दिस इज ब्रेकिंग, ये जो है ब्रेकिंग टॉर्क एक तरह से यू कैन से। तो अब अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट देखें, तो जो फील्ड स्ट्रांगर होगी, अगर फॉरवर्ड फील्ड हमारी स्ट्रांगर होगी, तो जो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरफ आ जाएगी, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, और अपोज करने के कारण जो नेट टॉर्क होगी वो हमारी जीरो होगी, ठीक है। अब अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क को बढ़ा दिया, तो जो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है उसी डायरेक्शन में हम प्लॉट कर सकते हैं।
ओके, सो अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट यू कैन ड्रॉ हियर, इस तरह से आप इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जीरो, और यहां से भी जीरो, ठीक है। तो इधर से भी ये आएगी, सो दिस विल बी जीरो, और इधर से भी ये जीरो होगी, ठीक है। अब अगर आपने फॉरवर्ड स्पिन दे दिया, सपोज फॉरवर्ड आपने स्पिन दे दिया, तो अब जो है यहाँ पे कुछ इसकी स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगी और ये कुछ यहाँ आएगी, ठीक है। अब बुक्स में इसको डॉटेड लाइन से बनाया होगा, फॉरवर्ड फील्ड को, बैकवर्ड फील्ड को, और ये जो है हमारे डार्क लाइन से। सो दिस इज द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये हमने बनाया है। अब हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसी होती है। तो नाउ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब देखिए, अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट की बात करिए तो इक्विवेलेंट सर्किट में जिस तरह से स्टेटर की इक्विवेलेंट सर्किट होती, जिस तरह से थ्री फेज इंडक्शन मोटर के केस में इक्विवेलेंट सर्किट होती थी, कुछ वैसी ही इक्विवेलेंट सर्किट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटर के पैरामीटर्स होंगे, तो आप स्टेटर के पैरामीटर्स को आप दिखा लें, उसके बाद फिर रोटर का पैरामीटर होगा, आप रोटर के पैरामीटर्स को दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो सपोज हमने यहाँ पे वोल्टेज ले लिया, दिस इज, हमने Vm वोल्टेज मेन वाइंडिंग में जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया, ठीक है, वो हमने अप्लाई कर दिया। दिस इज XL1, दिस इज R1, करंट जो हमारी फ्लो कर गई वो मेन वाइंडिंग में Im करंट फ्लो कर गई। अब देखिए, आप इंडक्शन मोटर में जैसे थ्री फेज में जिस तरह से होता था, ये आपने R0 ले लिया, दिस इज Xm, और जो हमारे रोटर के पैरामीटर्स होते थे उसको आपने, दिस इज XL2 एंड दिस इज R2। अच्छा, ये हमने कब बनाया है, व्हेन मोटर इज स्टेशनरी, व्हेन मोटर इज स्टेशनरी, ओके। तो यहाँ डैश लगा दो, ठीक है। अब स्लिप मैंने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि दोनों की स्लिप 1 है। तो अब देखो यहाँ पे वन थिंग कि जो हमारी R0 है, ठीक है, R0 क्या होता था, इट रिप्रेजेंट्स आयरन लॉस, ये हमारे आयरन लॉस को रिप्रेजेंट करता था। तो आप क्या करते थे, R0 को यहाँ से सर्किट से हटा देते थे, रिमूव R0 एंड ऐड इट विद मैकेनिकल लॉसेस, और आप इसको मैकेनिकल लॉस के साथ आप ऐड करते थे, और मैकेनिकल लॉस के साथ ऐड करके लास्ट में आप शाफ्ट टॉर्क या शाफ्ट पावर निकालने की कोशिश करते थे, यही होता था। तो अगेन हियर वी विल नेग्लेक्ट, वी विल रिमूव R0 फ्रॉम दिस सर्किट, R0 को यहाँ से आप हटा देंगे एंड ऐड आयरन लॉस विद मैकेनिकल लॉस एंड टू कैलकुलेट शाफ्ट पावर और शाफ्ट टॉर्क। तो अब जो ये सर्किट हो गई, ये कुछ इस तरह से हो गई, Vm, दिस इज XL1 R1, नाउ दिस इज Xm एंड दिस इज XL2 डैश, और ये हमारी है R2 डैश, ठीक है। दिस इज XL1, दिस इज R1, करंट हमारी हो गई Im, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है। अभी हमारी मोटर स्टेशनरी है। अब जब आप मोटर को रोटेट कराएंगे, तो आपने अभी क्या पढ़ा है कि जब मोटर रोटेट होगी तो दो फील्ड आएगी, एक फॉरवर्ड फील्ड आएगी, एक बैकवर्ड फील्ड आएगी। अब फॉरवर्ड फील्ड की वजह से अपनी स्लिप है और बैकवर्ड फील्ड की वजह से अपनी स्लिप है, तो अब जो ये सर्किट है ये स्प्लिट हो जाएगी। अब देखो आप, जो हमारी ये XL2 डैश है, एक फॉरवर्ड फील्ड के कारण, एक बैकवर्ड फील्ड के कारण, R2 डैश है, ये भी एक फॉरवर्ड फील्ड के कारण, एक बैकवर्ड फील्ड के कारण, और XM है, ये भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के कारण। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हाफ हाफ कर देते हैं, ठीक है। ये तीनों जो वैल्यूज है, इन तीनों वैल्यूज को हम हाफ कर देते हैं। अब आप देखिए, तो जो नेक्स्ट डायग्राम होगा उसमें क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे R1 XL1, सॉरी पहले आप XL1 ले लो, ये R1 हो गई, ठीक है। नाउ ये जो XM है,
आपने इसको xm/2 कर लिया और दिस इज R2 dash upon S, this is XL2 dash upon 2 and this is XM upon 2. ठीक है. Now again this is XM upon 2, this is XL2 dash upon 2 and this is R2 dash into अपॉन 2 माइनस सॉरी पहले तो आप उसको 2 से डिवाइड करो, यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड करना है, R2 डैश अपॉन 2s और ये क्या हो जाएगी R2 डैश अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एस. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी R2 डैश अपॉन 2 इन और s से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगी R2 डैश अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एस. ठीक है, और इधर आप आ जाएं, यहाँ आपने वोल्टेज अप्लाई किया Vm. ठीक है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस XL1 R1, करंट यहाँ पे आ गई Im. अब देखो आप, अब यहाँ पे जो वोल्टेजेस है ये है किसके कारण, ये जो सर्किट है दिस इज ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड एंड दिस इज ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड. तो अब जो यहाँ पे EMF होगी दिस इज E2F और ये EMF और दिस इज, अब जो ये EMF होगी ये क्या हो जाएगी E2B. ठीक है, ये हमारी E2B हो गई और दूसरी हमारी E2F हो गई और जो टोटल इंड्यूस्ड EMF है ये हमारी यहां पे हो गई EM. बात समझ में आ गई. सो दिस इज द बेसिक सर्किट. ओके, और इसके बाद यू कैन कैलकुलेट हियर. अब आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जो सर्किट बनी है किसके कारण है, दिस इज ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड. ये दिस इज ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड एंड दिस इज ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड. क्लियर है. तो हमने जो सर्किट बनाया वो एक तो बैकवर्ड फील्ड के कारण बना दिया, एक हमने फॉरवर्ड फील्ड के कारण बना दिया. Vm हमने वोल्टेज अप्लाई किया, स्टेटर के पैरामीटर्स हमने ले लिए, दिस इज XL1, दिस इज R1, Im करंट आ रही है. इफ वी टॉक अबाउट द टॉर्क, कि टॉर्क कितनी प्रोड्यूस होगी, तो एक जो टॉर्क होगी वो फॉरवर्ड फील्ड के कारण होगी और दूसरी जो टॉर्क होगी वो बैकवर्ड फील्ड के कारण होगी. और जो नेट टॉर्क आपने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में वो 0 होगी, फिर फॉरवर्ड फील्ड में अगर आपने स्पिन दे दिया है तो वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी. तो वी सी जो हमारी फॉरवर्ड टॉर्क होगी, फॉरवर्ड टॉर्क, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. सो दिस विल बी I2F स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन 2s, यही होगी. ठीक है, ये हमारी करंट रोटर में फ्लो करेगी. ठीक है, अब अगर बैकवर्ड टॉर्क होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I2B का स्क्वायर इंटू R2 डैश अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एस. ये हमारी बैकवर्ड टॉर्क हो गई. अब जो नेट टॉर्क होगी T, जो नेट टॉर्क होगी वो क्या हो जाएगी TF माइनस TB और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. अब आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू कैन राइट R2 डैश अपॉन 2, ये तो कॉमन है, और इसके बाद आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I2F का स्क्वायर अपॉन S माइनस I2B का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एस. ये जो हमने टॉर्क निकाला है सिंक्रोनस वॉट में निकाला है. आप अगर 1/ओमेगा एस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन मीटर में हो जाएगी. सो दिस मच सिंक्रोनस वॉट. सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग विच वी हैड डिस्कस्ड. इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में भी नहीं है. नाउ अगर आप आगे इसमें जानना चाहते हैं तो सो यू कैन अप्लाई ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, जिस तरह से हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में किया था. और नो लोड ब्लॉक रोटर टेस्ट करके इन जो सर्किट के पैरामीटर्स हैं इनको हम निकाल सकते हैं और सर्किट के पैरामीटर्स निकाल करके जो भी उसकी लॉसेस है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर. सो अब आप इस पे जो हमने अभी फंडामेंटल पढ़ा है इस पे आप सवाल लें. यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. सो टेक एनी प्रॉब्लम फ्रॉम बुक एंड यू कैन सॉल्व इट. ओके, सो दिस इज अबाउट सिलेबस. ये हमारा सिलेबस था, इसी में जितनी चीज़ें पढ़नी थी उससे हमने ज़्यादा ही देखा है.
अब आपको अगर कहीं भी इसमें डाउट हो रहा है तो यू कैन क्रिएट डाउट्स, यू कैन आस्क डाउट. सो थैंक यू.